And it's all because I'm working on my energy. Cleaning up, I'm taking care of myself and me. Drinking coffee, take a sip, they say I'm sparkling. Manifest it, write it down. हे गाइस व्हाट्स अप। सो माय नेम इज़ प्रीति यादव और आज मैं आपको लेके चलूँगी मुंबई की वन ऑफ द बिगेस्ट नर्सरी और थाने में सबसे बिगेस्ट है ये नर्सरी। तो मैं यहाँ से सबसे पहले बस लूँगी बोरीवली से, जो बस नंबर जाती है वहाँ से 65 और 131 दोनों AC बस है और काफ़ी कन्वीनियंट है। उसके बाद वहाँ से हीरा नंदानी हमें जाना है। वैसे मैं एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो चले शुरू करते हैं। Myself Preeti. Like I do a vlogging. So like I have seen your website on. So मुझे काफ़ी fascinate हुआ कि मुझे यहाँ पर आना ही था. Like you, first of all, you have done PhD in ecology, which is again a great achievement. So definitely you have a great knowledge of this. And Yes, I'm learning still. yeah, like every person It's is a learning. practical application of what I've learned. Yeah. So you know, like I really wanted to know because first of all, it is one of the biggest in Mumbai, this nursery. So definitely you have so many varieties. So can you please guide me about the small plants and what kinds of plants do you have and what are the varieties? Absolutely, why not? Let's take a walk around. Sure. As you have written कि attractive flower, like आपने हर एक सेक्शन बना के रखा है. Why so? See, because हमने ऐसा देखा कि यहाँ आजू बाजू में जितनी भी नर्सरीज हैं, they are not being, managed or run in a very scientific manner. So we thought that it would be very helpful for the client if we divide the plants into categories. जो प्लांट्स उनको इंडोर रखने हैं वो इंडोर रखें, जो आउटडोर रखने हैं वो आउटडोर रखने हैं, या प्लांट का पर्पस क्या है, उसके पत्ते सुंदर हैं या उसकी फ्लावरिंग अच्छी होती है, या उसका कलिनरी यूज़ है, या क्या वो एक नासा रिकमेंडेड एयर प्योरीफाइंग प्लांट है, या वो एक सक्यूलेंट है, एक्वेटिक प्लांट है, दैट वेज. So we have tried to categorize plants and we have also tried to name each plant. थिंग आई लव अबाउट दिस नर्सरी कि आपने कैटेगराइज किया है. तो ये बहुत अच्छी बात है कि मुझे पता चलेगा कि ये सेक्शन में अट्रैक्टिव फ्लावर्स हैं एंड देन वो सेक्शन में डेकोरेशन प्लांट्स है. देन देयर आर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक थिंग. लाइक व्हेन यू गो टू नर्सरी यू वांट टू नो कि हाँ लाइक विच प्लांट वेयर आई विल फाइंड एंड सो दिस इज़ गुड थिंग. I wanted to ask a question. आपने अपने वेबसाइट का नाम अर्बन इकोनूक दे रखा है. Why अर्बन इकोनूक and how it has been derived? Can you tell? Yeah. See, actually, the motivation behind the name Urban Econook is twofold. First and foremost, we are all observing that this world is urbanizing rapidly. So, I may love to have a rural Econook, but that is not where the world is headed. So, if I want to talk about ecology, if I want to talk about sustainability of the ethos of shared living and all that, then I have to talk in the right context. And solutions are needed in an urbanizing world, not a world which is rural. So that is why urban, eco and nook means corner, a sustainable corner, a green corner in the fast, rapidly urbanizing cities. And that's the reason आपने थाने like एक सिटी के बीच में अपना ये Exactly. We nursery are right in the middle of a and thriving that's the city. reason it is one of the biggest nursery here. So yeah, like it's quite fascinating because at present हम एक वक्त तो हम जंगल में ही रहा करते थे. It's back to our bases, back to our roots. Yeah. But at the same time, with a realistic approach that we cannot really go back. We have to have the modern comforts, we have to have the modern facilities because we are so used to it now. So can we live with that and get the best of the forest? That is the ethos behind it. And human are good at adapting things. Like हम ना कोई भी नीचे में ढल सकते, बस वो हमारे अंदर से शुरुआत होना ज़रूरी है.
कैन यू टेल मी अबाउट बॉन्साई एंड व्हाई इट इज सो कॉस्टली, लाइक 4,500? मैं ना आपको जितना छोटा लग रहा है ये उतना छोटा एक्चुअली है नहीं. इफ इट हैड नॉट बीन अ बॉन्साई इट वुड हैव बीन क्वाइट अ टॉल फाइकस ट्री. सो बॉन्साई का जो आपका क्वेश्चन है व्हाई इज इट सो एक्सपेंसिव, बॉन्साई बनाना एक बहुत स्किल्ड काम है और इसमें बहुत समय जाता है. लाइक वेरी प्रिसाइसली, वेरी केयरफुली, वेरी स्किलफुली यू नीड टू ट्रिम द ग्रोथ ऑफ द रूट एंड द शूट इन सच अ वे दैट यू गेट अ स्टंटेड ट्री इन अ पॉट. यू नो अदरवाइज ट्रीज कहाँ कितने बड़े और ह्यूज होते हैं आपको पता है. बट इट इज सो कॉस्टली. कैन यू टेल मी अबाउट द बेनिफिट, लाइक व्हाई शुड आई टेक इट? See, it first and foremost looks gorgeous. The most important aspect that I like about bonsai is कि ये इतना खूबसूरत दिखता है. Secondly, I like the overall message that the whole technique gives. हिंदी में कहावत है ना, गागर में सागर. हाँ. So you're sort of getting a huge potentiality into a small thing which is so understandable. अगर आपको एक पेड़ को अच्छी तरह से देखना है तो शायद आप उसका टॉप चढ़ करके ना देख सकते, बट उसका एक छोटा सा हिस्सा देख, आप देख कर हाँ, तो उसका मजा ले सकते. राइट. So this is what I feel personally. But still it is very costly. I will not purchase. That's okay, you have a smaller version. Maybe that will be No, but still that too it will be costly. Like for 4,000 मम्मी तो कभी नहीं लेगी. आपके पास कोई सस्ता है मेरे लिए? 50 रुपए में हाजिर है आपके पास बहुत सारे ऑप्शन. 50 रुपये यार, मतलब मैं तो 50 लेके चले जाऊँ और गिफ्ट भी दे दूँ, बट 4,000 का ना लूँगी. आपको लगता है कि कोई 4,000 का लेता भी होगा? लेने वाले तो लेंगे, बट स्टिल मैं नहीं लूँगी, मैं आपको पहले बता दे रही हूँ. तो आप मुझे इंडोर प्लांट्स के बारे में बताओगे? देखो, इंडोर प्लांट्स के बारे में हमारा एक जो मिसकॉन्सेप्शन है, हम उसको समझते हैं कि उसे अंधेरे में भी वो ग्रो कर जाएगा. एक्चुअली ऐसा नहीं है. उनकी लाइट की रिक्वायरमेंट कम होती है. दे आर लो लाइट लविंग प्लांट्स बट दे आर नॉट नो लाइट लविंग प्लांट्स. ओके, सो कोई भी ग्रीन पौधा है जो या दूसरे कलर का भी पौधा है, उसके पत्तों में जो पार्टिकल्स होते हैं जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसके लिए लाइट तो चाहिए ही उनको. अब किसको कम चाहिए, किसको ज़्यादा चाहिए, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि वो इंडोर होगा या आउटडोर होगा. सो लार्जली योर इंडोर प्लांट्स रिक्वायर लो लाइट. ओके, मैंने आपके वेबसाइट पे फीचर्स काफ़ी देखे हैं. मुझे सबसे अलग ये लगा कि लाइक हॉर्टिकल्चर, देयर इज़ अ गार्डनर विच मीन्स हॉर्टिकल्चर, एंड लाइक व्हेन आई हैड एन इंटरेक्शन विथ हर, सो शी हैज़ डन मास्टर्स. लाइक डेफिनेटली दे हैव अ ग्रेट नॉलेज इन दिस फील्ड. वेयर एज मैं एक नॉर्मल नर्सरी पे जाती हूँ ना, आई डोंट फाइंड लाइक एक लोकलाइट पर्सन होता है, तो लाइक जस्ट से कि आपको मतलब मैं जा रही तो मैं कुछ भी लेके आ जाऊंगी, राइट? मुझे कोई गाइडेंस नहीं मिलता है, बट एक्चुअली दे प्रोवाइड अस गाइडेंस. सो कैन यू टेल मी मोर अबाउट योर फीचर्स, लाइक व्हाट आर इंक्लूडेड? सो प्लीज़. सो सी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो आप यूजुअल नर्सरीज देखते हैं, दे आर रन बाय पीपल हु थिंक दैट प्लांट इज अ मियर प्रोडक्ट, राइट? Whereas we look upon it as a living thing, which is the जादू की छड़ी to set our earth right again. So the passion with which we view our product is different from the way a typical business owner would look at the plant in his nursery. So I think that is what sets us apart. And as I said, see, each plant is different, मैं अगर ये बोल दूँ कि हम सारे एप्स हैं, तो क्या ह्यूमन और गोरिल्ला बराबर हो जाएंगे? नहीं. तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये सिंगोनियम जो है वो मनी प्लांट से सिमिलर है बट सेम है और उसको एक ही कैटेगरी में डाल दिया जाए? दे आर डिफरेंट स्पीशीज. सो वी फील दैट पीपल हु कम हियर, they have every right to know what they are buying and how they are going to take the best care of it. So that is why I insisted कि हमारी नर्सरी में हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट्स हों. एट द सेम टाइम जो हमारे गार्डनर्स हैं उनको भी हम बहुत रिस्पेक्ट के साथ रखते हैं, बिकॉज दे हैव ग्राउंड नॉलेज. उन्होंने अपने हाथ मिट्टी में गंदे किए हैं, तो वो एक अलग तरह का प्रैक्टिकल इनपुट है. और जो थ्योरेटिकल इनपुट हमारे हॉर्टिकल्चरिस्ट लाते हैं, वी ब्रिंग बोथ ऑन द टेबल. लाइक आई डोंट हैव नॉलेज अबाउट श्राव्स, तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मेरी ऑडियंस भी लाइक एज आई एम अ ट्रैवलर, सो आई हैव नेवर बीन टू नर्सरी, बट देन आई डिसाइडेड लाइक मुझे काफ़ी फैसिनेट अर्बन इको नूक ने कि यहाँ पर मजबूर करने के लिए, क्योंकि ये फर्स्ट वन ये बहुत बड़ा है.
और आप मैंने आपकी वेबसाइट पे देखा कि यहाँ पर मोर देन 500 प्लांट्स, लाइक यू विल फाइंड मोर देन 500। लाइक मुझे यहाँ पर ना बहुत सारे वैरायटीज़ दिख रहे हैं मिलने, क्योंकि मैंने आज से अपने लाइफ में देखा ही नहीं इतनी वैरायटी। एक नॉर्मल मेरे घर में भी क्या है, हार्डली लोगों के घर में क्या होता है, तुलसी जो कि बहुत कॉमन है सबके घर में, नीम जी, मतलब आसपास ही देखी जाता है। बट मोर देन 500 प्लांट्स, मैं तो सजेस्ट करूँगी हाईली। देखो ये मुंबई में, आप लोग अगर मुंबई में रहते हो या फिर थाने में रहते हो या फिर नवी मुंबई में रहते हो तो डेफिनेटली ये प्लेस को ज़रूर विजिट करना, क्योंकि यू नो क्योंकि ये ना कुछ दिनों में ना यहाँ पर ना ओपन माइक होने वाला है। इट्स लाइक यू नो यू आर गोइंग टू कंडक्ट, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ कल्चरल नाइट थीम्स ओवर हियर फॉर पोएट्री, रिसाइटेशन, सिंगिंग एंड एवरीथिंग। Exactly, it is not going to be boring. There is this famous poet, like nature doesn't need human and human needs a nature. अगर हम आज के डेट पे खत्म हो जाते हैं तो नेचर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। Exactly, look, It will आप go ही on देखो ना, probably in a better कोविड में manner. like I'm not like just कोविड में कितनों की डेथ हुई, बट नेचर आज भी हमारे साथ है। दुनिया सिर्फ हमारी नहीं है, वी शेयर इट विद अ लॉट ऑफ अदर स्पीशीज एंड दे हैव डिफरेंट नीड्स, डिफरेंट नेसेसिटीज। सो इकोलॉजी पढ़ के ये सिर्फ ट्राइबल ही नहीं, आपको ये रियलाइजेशन कि एक वायरस तक आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, वो इतना ह्यूज लेसन है लाइफ का। लाइक श्रव्स का आप मुझे बता दो ना, आपने ये सब के चक्कर में हम shrubs ही भूल गए, right. So why we have created a section, shrubs are basically woody plants which have multiple branches close to the ground, so that clients know where to fit it in their houses. आपने क्लाइंट की बात की, पता है मुझे एक और बात मैंने आपको बताना भूल गई। लाइक यू नो यहाँ पर आपको वन ऑफ द बेस्ट सर्विस जो मैंने अभी तक नहीं बता के रखी थी ये है कि आप लोग कोई भी XYZ प्लेस पे घूमने जाते हो, आपके घर में 10-12 पेड़ हैं, तो यू नो सबके मन में थॉट आता है ना कि पानी कैसे देना है, कहाँ देना है, कौन देगा। तो यूजुअली हम अपने नेबर्स को देख के जाते, बट एक बात बोलो, सब इंडियन है, सबके मन में ये थॉट आता है ना कि यार नेबर को चाबी तो दे के जा रहे हैं, बट स्टिल वो रहेगा ना यार, वेरी ह्यूमन, वो ह्यूमन मेंटालिटी, राइट। कि मतलब एक मन में ना अपने मन में रहेगा कि यार कोई XYZ पर्सन आने वाला है, पौधे को पानी देके जाएगा, पता नहीं, हम सबका नेचर नहीं जानते। तो यहाँ पर आपको अगर आप इनके यहाँ से प्लांट ले रहे हो ना, तो यहाँ पर एक बेस्ट सर्विस मिल रही है दैट यू नो आप बेफिक्र होके घूमने जाओ, बस यहाँ पर अपने पौधे आप रख के जा सकते हो। जस्ट लाइक यू कीप अ डॉग इन अ केनल, हमने उस सर्विस का नाम ही प्लांट केनल सर्विस रखा है। एंड इट इज़ इन रेफरेंस टू द थॉट कि जब आप लंबे समय के लिए जाते हैं तो आपके पौधे को सिर्फ पानी की ही ज़रूरत नहीं होती है, न्यूट्रिशन या अगर किसी पौधे में कुछ कीड़े लग गए तो उस तरह का केयर भी चाहिए होता है। सो वी प्रोवाइड अ कंप्लीट केयर पैकेज अंडर आवर प्लांट केनल सर्विस। अच्छा, लाइक वी हैव डन, लाइक मुझे काफ़ी नॉलेज मिला प्लांट के बारे में। तो मुझे आप पॉट सेक्शन बता सकते हो, क्योंकि मैंने सुना ये भी काफ़ी यूनिक है। हाँ, like, वहाँ भी डाइवर्सिटी रखी है। सो लेट्स गो टू दैट पार्ट। सो वी आर इनटू पॉट सेक्शन, और मुझे ये पॉट काफ़ी यूनिक लगा। आप मुझे ये पॉट के बारे में बताओगे कि कैसे बना है ये पॉट? यू नो लाइक आप इसे देख सकते हो, ध्यान से देखो, ये पूरा है ना नारियल से बना है ना, तो आप मतलब ये मैंने कहीं देखा नहीं है, तो आपने ये पहली बार, मतलब आप पहली बार? नहीं, नॉट एट ऑल, आई कैन नॉट क्लेम कि ये बहुत यूनिक है। ये थोड़ा अनकॉमन है, लोग रखते नहीं है, क्योंकि एज आई सेड मैक्सिमम नर्सरीज जो है वो केवल प्रॉफिट लॉस के बेसिस पे ऑपरेट करती हैं। वी आर ट्राइंग टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑल्सो। तो ये जो पॉट है ना, ये जो हमारे सप्लायर है वो रत्नागिरी के एरिया में है, दे आर फार्मर्स देयर, और ये वहाँ से बना के हमको ये भेजते हैं। प्लास्टिक की भी सर्विस है, अगर आप प्लास्टिक का पॉट भी ले रहे हो, आपने मुझे बताया था ना कि प्लास्टिक का पॉट यहाँ पर आप बता सकते हो? एक्चुअली क्या है, क्लाइंट्स हैं, आप उनको बहुत ज़्यादा स्कूल भी नहीं कर सकते हैं। लाइक यू कैन नॉट टेल देम कि हम यहाँ पे प्लास्टिक के पॉट नहीं दे रहे हैं, बिकॉज इट्स आवर बेस्ट सेलिंग आइटम, आई कांट हेल्प इट विद दैट। So what is the second best thing we do? We offer this service to our client कि अगर प्लास्टिक उनका कभी भी क्रैक होता है पॉट या वो ठीक रहा है, तो whenever they are coming, they can come and give it to us and we get it recycled. We send it to the manufacturer और वो उसको recycle कर देते हैं, so that you know it is responsible plastic use. So it's like कि if you are buying the plastic from your, तो आप एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह एक्ट करोगे। आप प्लास्टिक को यूज़ कर भी रहे हो, नो डाउट हम प्लास्टिक को अपनी लाइफ से बिल्कुल तो हटा नहीं सकते ना, वो बहुत कॉमन हो गया है।
तो धीरे धीरे घटा सकते हैं, घटा सकते हैं, बट और एक दिन में भी तो चेंजेस होगा आता नहीं होगा। तो वी हैव टू प्रोवाइड सॉल्यूशंस इंस्टेड ऑफ बीटिंग यू नो अबाउट द प्रॉब्लम। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती थी, लाइक ध्यान से देखना इसे, ये ना रिसाइकिल से, और जो आप घर में पोछा लगाते हो ना, ये सेम वही है। आपने इसको कैसे किया बता सकते हो? दिस इज़ अ वेरी यू नो इजी टू डू थिंग। आपको ऑनलाइन भी देखो तो बहुत सारे वीडियोस हैं। दिस इज अगेन नॉट समथिंग विच इज़ ओरिजिनली डन बाय अस। आप सिंपली जो आपका रैग होता है जिसका कोई और यूज़ नहीं है और अब वो फिक जाएगा और यू नो आपके डस्टबिन में जाएगा, तो वहाँ से आप उसको रोक लेते हैं फिकने से। उसको आप सीमेंट के घोल में डिप करते हैं और कोई भी आपके जो पसंद का मोल्ड है, चाहे वो एक पुराना बकेट हो या एक पुराना पॉट हो, उसके ऊपर आप इस कपड़े को स्टिफेंड विथ यू नो लिक्विड सीमेंट आप इसे मोल्ड कर देते हो, शेप दे सकते हो। लाइक यू नो, मैंने लाइफ में कभी एक्वेटिक हैज इंडोर प्लांट नहीं देखा है। इसे इंडोर रखा जाता है कि आउटडोर? सबसे पहली बात कि एक्वेटिक ज़्यादातर जो प्लांट हमारे होते हैं उनको लाइट चाहिए होती है। सो हमने सिर्फ एक थोड़ा सा एडिशनल थिंकिंग किया यहाँ पर कि एक्वेरियम जो रखते हैं लोग, उनको एक्वेरियम के अंदर एक्वेटिक प्लांट्स चाहिए होते हैं। सो देयर इज़ अ यू नो डिमांड फॉर एक्वेटिक प्लांट्स, बट अधिकतर नर्सरीज जो हैं वो इतना कनेक्ट नहीं कर पाते हैं शायद से, विच इज़ वाई एक्वेटिक प्लांट्स ईजिली आपको लोकल नर्सरीज में नहीं मिलेंगी। इस चीज़ को हमने ऑब्जर्व किया, दैट इज़ वाई वी स्टार्टेड एन एक्वेटिक प्लांट सेक्शन। सो दीज आर ऑल प्लांट्स विच कैन बी केप्ट इन द एक्वेरियम। आप मुझे बाम्बू प्लांट के बारे में बता सकते हैं, हाउ इट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस? Yeah, because see, we are talking about eco-friendly planters, so bamboo becomes a good option as far as eco-friendly planters are concerned, क्योंकि दो बहुत इंटरेस्टिंग रीज़न है। एक तो बैम्बू बहुत फास्ट ग्रो करता है, तो वो हार्वेस्ट करके लाइवलीहुड का कारण बनता है बहुत सारे यू नो ट्राइबल पीपल या लोकल रूरल लोगों का। So this has been made by you know the traditional people in Assam, and that is where we have got it from. अच्छा, हम इसे यूज़ कहाँ करेंगे? ये आप अपने घरों में कॉर्नर्स में रख सकते हो। लाइक इसके अंदर छोटे वाले पौधे जो सक्यूलेंट्स होते हैं आप वो डाल सकते हैं। इट्स लाइक काइंड ऑफ डेकोरेटिव थिंग। इट्स अ डेकोरेटिव थिंग, यस। इट्स रियली नाइस। एंड टू यू ऑनेस्ट ना, लाइक मैंने काफ़ी एक्सप्लोर कर लिया है, तो आई गेस मेरे ऑडियंस को भी बहुत सारा नॉलेज मिल गया होगा। बट यू नो, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती थी, लाइक लोगों का मन होता है ना कि आपने पहली बार तो PhD किया है इकोलॉजिक में, राइट? तो यूजुअली होता है ना कि बिजनेस अगर स्टार्ट करना होता है लोगों को, तो दे चूज कैफे और यू नो दी वॉट एवर XYZ थिंग, बट वाई नर्सरी? Yeah, that's a very good question actually, you know. See, what I feel is that very soon we are going to need a lot of professional people who understand botany, who understand zoology, who understand ecology, because the earth is in a bad shape. We cannot hide this fact anymore. And solution providers will be people who understand all this. So green businesses are the future, and nursery is a very, very, very good example of green business. You know, we are taking care of our planet. We are ensuring that you know we are using unskilled labor or training unskilled people or trying to work with you know rural people so that उनकी livelihood support हो. So people, planet, and of course I am making money because my family तो इस पे ही run कर रही है. So people, planet, profit जो हम बोलते हैं, the 3 Ps. It's a very good way of taking care of all these. That's really nice. And one more thing, like before ending this vlog, like आपने इतनी सारी जानकारी तो मेरे ऑडियंस को दे ही दी है। लाइक माई यूट्यूब फैमिली इज़ लाइक नाउ 1K सब्सक्राइब, मोर देन दैट। सो यू नो लाइक वॉट दे आर गोइंग टू गेट, लाइक अगर उनको आपके वेबसाइट से प्लांट लेना रहा तो आप उनके लिए कुछ ऑफर या डिस्काउंट? Why not? You're most welcome to the nursery. I would love it if you visit. You will definitely get 20% off if you can say that you've come after seeing this video. And otherwise, if you're ordering from a website, you can always ping us. We'll tell you the code to use to avail that off on website orders also. That's really nice. Like, so guys, if you are planning to buy a plant, so definitely I would highly recommend go to the website Urban Nook. मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और मैं एड्रेस भी डाल दूँगी।
एंड आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप यहाँ से लो, क्योंकि यू नो नॉर्मली I would really welcome people to come here so that they get the experience and also the plants or the pots that they're here to buy. एग्जैक्टली लाइक वन टाइम विजिट इट इज वर्थ विजिटिंग. I think people will enjoy. Yeah, so thank you and Thank you thank so you much. for Thank guiding you. me. No, thank you for coming here. Thank you.